हाय, हाउ आर यू ऑल। हम जानते हैं कि पुल का मतलब है खींचना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुल ओवर का मतलब है गाड़ी बाजू लेना। इसी तरह कॉल का मतलब है बुलाना, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब है कैंसल कर देना। गिव का मतलब है देना और गिव अप का मतलब है हिम्मत हार जाना। पुट का मतलब है रखना एंड पुट ऑन का मतलब है पहनना। यू माइट नोटिस दैट विद अ स्लाइट चेंज द एंटायर मीनिंग चेंजेस। एक थोड़ी सी तब्दीली की वजह से पूरे माने बदल जाते हैं। पुल सिर्फ ओवर लगा दिया उसको, पुल ओवर मिलके द मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स आर पोल्स अपार्ट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक में खींचना है और एक में कार बाजू लेना है। तो जो पुल है हम इसे कहते हैं वर्ब, क्योंकि पुल एक वर्ड है जो एक मीनिंग बता रहा है। और जो पुल ओवर है, ये दो जो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना है पुल ओवर, हम इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और आज के लेसन में हम वही पढ़ने वाले हैं। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, when one word shows one action, it is a verb. When two words show one action, it is a phrasal verb. And today we are going to learn how important phrasal verbs are, how often do we use them, and I'll teach you 15 important phrasal verbs. So without any further ado, let's get started. Our first question is, how often do we use them? हम उनका इस्तेमाल कितना करते हैं? To make you understand, let me tell you a series of unfortunate events that unfolded today with me. कुछ मेरे साथ कुछ हादसात हुए सुबह में आज, तो बयान करूंगा। आपको अंदाजा होगा कि मैंने कितने बार यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। Keep watching and keep counting the number of phrasal verbs I'm using in these sentences. I got up around 7 o'clock. I turned off my alarm. I got ready and I set off for my work. I was driving to my work and my car broke down. I pulled over my car. I came out. I called up one of my friends. I think he was held up in traffic and the noise around him was so loud that he could not understand what I said to him. Eventually, he hung up my phone call before hearing me out. I was left with no option. I was waiting for some help over there, but I was running out of time. Hence, I caught a bus and thankfully, I reached my office in time. Thankfully, nothing of this happened. I just cooked up this story, or you can say made up this story to let you know how frequently we use phrasal verbs in our speech. अब मैंने जितने बातें की है उसमें तकरीबन मैंने 12 से 13 phrasal verbs का इस्तेमाल किया है। तो phrasal verbs are vitally important in English because native speakers use them quite a lot. And this topic happens to be one of the most important and advanced grammar topics in English language. So make sure you watch the entire video and you enhance your vocabulary. क्योंकि इसमें होता क्या, फर्क थोड़ा रहता लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। जैसे ब्रेक मतलब तोड़ना, लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब है गाड़ी का खराब हो जाना। We have zillions of phrasal verbs and it is virtually impossible to include all of them in our videos. Hence, I'll do one thing. Proceeding in alphabetical order, I will teach you 3 phrasal verbs with each letter. पूरों को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, टाइम डज नॉट परमिट अस, टाइम नहीं है हमारे पास उतना। तो हम ये करेंगे कि हर लेटर से, ए से, बी से, सी से, हर लेटर के 3 phrasal verbs हम सीखेंगे। और इस वीडियो में हम ए से लेके ई तक सीखेंगे, दैट विल बी 15, एंड इन आवर कमिंग वीडियोस पार्ट 2 और पार्ट 3 वी विल कीप लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट phrasal verb इज अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब है टू फॉलो, अमल करना। You need to abide by the traffic rules, otherwise traffic police will impose fine on you. आपको ट्रैफिक के रूल्स पे फॉलो करना है। That means you have to wear helmet, you should not jump a signal and you should not go on the wrong side of the road. ये थोड़े रूल्स है, इसको फॉलो करना है। If you do not abide by these rules, अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, the police will impose fine on you. पुलिस आप पर फाइन, जुर्माना लगाएगी। Our next example is he was laid off because he was not abiding by the company's rules and regulations. वो उसको कंपनी से निकाल दिया गया, laid off उसको निकाल दिया गया। fired का एक अच्छा वर्ड है laid off, क्योंकि वो कंपनी के जो रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उसको फॉलो नहीं कर रहा था। Our next word is answer back. Answer back, answer जवाब देने को बोलते हैं, लेकिन answer back का मतलब है उल्टे जवाब देना, गुस्से में जवाब देना, खासकर बड़े लोगों को। See this example. My teacher reprimanded me for a wrong reason. I was tempted to answer back, but I restrained myself because I knew it is impolite
to behave badly with our teachers and elders. मेरे उस्ताद ने मुझे बिना किसी गुस्से के डांट दिया सबके सामने. मुझे दिल बोला कि मैं उनको जवाब नहीं उल्टा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि ये गलत है. हमें अपने बड़ों का अदब और एहतराम करना है. Our next example is don't you dare answer me back. अगर तुमने उल्टा जवाब दिए मुझे तो अच्छी बात नहीं होगी. ये जो डोंट यू डेयर है एक अच्छा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी कॉशन समवन, व्हेन वी वार्न समवन. हम जब किसी को वार्निंग देते हैं, अगर आप ये करें तो अच्छी बात नहीं होंगी. सी मोर एग्जाम्पल्स. डोंट यू डेयर टच माई फोन. अगर आप मेरा फोन को टच करेंगे अच्छी बात नहीं होगी. डोंट यू डेयर टेल माई फादर अबाउट दिस थिंग. अगर तुम अब्बू को बोलेंगे इस ताल्लुक से तो अच्छी बात नहीं होगी. सो डोंट यू डेयर एक अच्छा एक्सप्रेशन था जो मैं आपको साथ में सिखा दिया. लेट्स मूव ऑन. अवर थर्ड फ्रेजल वर्ब इज आस्क आफ्टर. आस्क आफ्टर का मतलब ये है किसी की खैरियत पूछना. सी एन एग्जाम्पल. आई मेट जॉनसन टुडे एंड ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू. मैं जॉनसन से मिला था आज और वो आपके ताल्लुक से आपकी खैरियत पूछ रहा था. Our next example is I got to know that Tom met with an accident. He sustained many minor and major injuries. Let's go and ask after his health. मुझे मालूम हुआ कि टॉम का एक्सीडेंट हो गया है, उसे कई चोटें लगी, बड़ी और छोटी. चलो चलते हैं और उसकी खैरियत पूछते हैं. इन प्योर उर्दू यू कैन से उनकी मिजाज पुरसी करते हैं. Our fourth phrasal verb is break down. Break down का मतलब है to stop functioning. कोई मशीन का रुक जाना. Let's say My car broke down, then I lost my keys. It never rains, but it pours. पहले तो कार खराब हो गई, फिर चाबियां गुम गए, और जब मुश्किलात आते ना पूरे साथ में आते. So it never rains, but it pours एक अच्छा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है. We use it when we are completely frustrated, irritated. जब हम एकदम चिड़ में और गुस्से में रहते तो उसका इस्तेमाल करते. It means that when problems come, they come all together. जब मुश्किलें और बलाएं आती है तो पूरे साथ में आती हैं. Our next example is because of stormy weather and continuous heavy rain, the telephone system has broken down. तूफान और लगातार बारिश की वजह से टेलीफोन सिस्टम खराब हो चुका है. Our fifth phrasal verb is black out. To black out means to faint or to lose consciousness. बेहोश हो जाना. After the accident, she blacked out and she could not remember what had happened. हादसे के बाद वो बेहोश हो गई और उसको याद नहीं आ सका कि क्या हुआ था. He tripped over a cable, dashed his head against the wall and he blacked out. वो ठोकर खा के गिरा वायर से, केबल से. ट्रिप्ड ओवर मतलब ठोकर खाना. वो ठोकर खा के गिरा, उसका सर दीवार को लगा और वो बेहोश हो गया. ब्लैक आउट मीन्स बेहोश हो जाना. बटर अप. टू बटर अप मीन्स प्रेजिंग समवन एक्सेसिवली इन ऑर्डर टू गेट अ फेवर. किसी की दिल खोल के तारीफ करना, चापलूसी करना, खुशामद करना ताकि हमारा काम बन जाए. जॉन इज ए सिकोफेंट. ही कीप्स बटरिंग अप हिज बॉस. जॉन एक चापलूस है. जो पर्सन बटर अप करता है हम उसे चापलूस कहते हैं. सिकोफेंट इज द वर्ड. सो जॉन एक चापलूस है, हमेशा बॉस को खुशामद करता है, वो चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई ट्राई टू बटर अप माई फादर बाई डूइंग सम हाउस चोर्स बिकॉज आई वांटेड सम एक्स्ट्रा मनी. मैं अब्बू को मस्का लगाने की कोशिश करा घर के थोड़े काम वगैरह करके ताकि मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत थी. कॉल ऑफ. टू कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसल समथिंग, टू कैंसल अ मीटिंग और टू कैंसल अ क्लास. The match was cancelled because of incessant rain. लगातार बारिश की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया. कॉल ऑफ का एक और मतलब ये भी है कि अगर आपने किसी पर हमला करने के लिए किसी इंसान को छोड़ा या किसी कुत्ते को छोड़ा तो उसको वापस बुलाने को हम कॉल ऑफ कहते हैं. सी दिस एग्जाम्पल. आई विल टेल यू वॉट एवर यू वांट, जस्ट कॉल ऑफ योर डॉग्स. किसी ने किसी को कुत्ते छोड़ दिए तो बोल रहा है कि भाई आप जो चाहते मैं आपको बोल दूंगा, कुत्तों को वापस बुला लीजिए आप. टू कॉल ऑफ मीन्स टू कॉल your dogs or people back. उनको वापस बुला लेना. Come across. To come across means to find something unexpectedly. I had been searching for this book since 2015. By a stroke of luck, I found it in a local store. ये किताब को मैं कब से ढूंढ रहा था और किस्मत से मुझे एक दुकान में मिल गई. I came across. She came across a pile of old photographs when she was cleaning the attic. जब वो सज्जा साफ कर रही थी तो उसको पुराने कई फोटोज मिले. Count on. To count on means to rely on someone. किसी पर भरोसा करना या निर्भर करना, एतमाद करना. He is a workaholic person. You can count on him. He will get your work done on time. आप उसे भरोसा कर सकते हैं, वो बहुत मेहनती है, हमेशा मेहनत करता है, वो अपना आपका काम टाइम पर कर देगा. Next example is you can count on him. He is a truthful person. He won't double cross you at the 11th hour. आप उसे भरोसा कर सकते हैं, वो सच्चा आदमी है और वो आपको आयन मौके पर हाथ नहीं देगा, मतलब धोखा नहीं देगा. ड्रॉप इन.
टू ड्रॉप इन मीन्स टू विजिट समवन कैजुअली विदाउट इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड। किसी के पास मेहमान जाना बिना पहले बोले हुए। एक तो प्लान करके बोलते हैं, जब बड़े लोग आते हैं कि मैं आने वाला हूँ फला दिन, हम उसे विजिट बोलते हैं। एक कैजुअल है, इनफॉर्मल है, वहाँ से गुजर रहे थे, मिलने आ गए, हम उसे कहते हैं ड्रॉप इन। लेट्स से आप बीमार हैं तो आपके एक दोस्त आप घर पे आते हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, तो कहते हैं आई जस्ट ड्रॉप्ड इन टू आस्क आफ्टर योर हेल्थ, आई विश यू आई स्पीडी रिकवरी। मैं बस ऐसे गुजर रहा था तो आपसे मिल लिया और मैं तमन्ना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। Our next example is I might get late to office today because some relatives have dropped in. हो सकता है कि आज मैं ऑफिस को लेट हो जाऊं क्योंकि मेरे घर बाद रिश्तेदार आए हैं। अनप्लान जो लोग आते हैं हम उसे कहते हैं drop in. Our next phrasal verb is dine out. To dine out means बाहर खाना खाना। Dine खाने को कहते हैं, dining table, dinner time. So let's dine out or order in. It's up to you. चलिए बाहर खाते हैं या घर पे ऑर्डर करते हैं, आपकी मर्जी। It is his birthday today. Let's dine out and he will foot the bill. चलिए आज उसकी बर्थडे है, बाहर खाना खाएंगे और वो बिल पे करेगा। Egg on. Egg on means to encourage someone, usually to do something foolish and dangerous. यानी चढ़ाना किसी को, मतलब कोई अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि कोई बेखुफी काम के लिए, कोई खतरनाक काम के लिए। The other students egged him on when he was scaling the boundary wall. दूसरे बच्चे उसको चढ़ा रहे थे जब वो दीवार पे चढ़ रहा था। Obviously, it's very dangerous and perilous. जाहिर बात है बहुत खतरनाक है दीवार पर चढ़ना। You might fall down, गिर भी सकते हैं, लेकिन अब चढ़ा रहे हैं जो encourage करते हैं कोई dangerous काम करने के लिए, हम कहते हैं egg on. Another example is at first Tom and John were having just a mild argument, but Tom's friend egged him on, punching John in its face. लेकिन टॉम को दुश्मन चढ़ा के जॉन को पंच मारो और मार दिया। जो लोग चढ़ाते हैं कोई काम करने के लिए हम कहते हैं egg on. Embark on. To embark on means to start a journey, to start a new career. Before you embark on a journey of revenge, dig 2 graves. जब आप बदला लेना चाहते हैं तो 2 खबरें खोद लो। Because 2 wrongs do not make a right. 2 गलत काम एक सही काम नहीं करते। So it's not good to take revenge. अब बदला लेना चाहते हैं तो आपकी भी उसमें नुकसान होगा। He is embarking on a new career as a content writer. वो एक content writer बनने का जो career है वो शुरू कर रहा है। Our last phrasal verb of the day is end up. To end up means finally arrive at an unexpected place. यानी कुछ ऐसी जगह पहुंचना जहां पर आपकी उम्मीद नहीं है। Let's say you have been working really hard, you have been burning midnight oil. Take some rest, otherwise you will end up in a hospital. आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत मत करिए वरना आप दवाखाने पहुंच जाएंगे। One more example, you need to work hard, otherwise you will end up nowhere. आपको मेहनत करना है वरना आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। That's it for today. I do not want our video to be lengthy. I am stopping it here. In my coming videos, I will teach you more phrasal verbs. Hence, make sure you subscribe to my channel for my future updates. If you like this video, give it a thumbs up and share it with your friends and family. Until the next video, Assalamu alaikum.